Okay, let's get started. We have yet another class of this Git and GitHub. If we go to our GitHub, github.com. Okay, I go to the profiles and repositories. I just create a new repository, for example, and call it whatever what I want to do today. I want to do branch and ignore, right? Let me call it branch ignore. Okay, whatever. And learning, I say learning, firstly git ignore and branching. Very two important concepts of our this, and I will add this readme file because I'm starting from the GitHub. And even though if you start from the from the Git, you can still have a readme file there also and write stuff into that. Okay, I just go ahead and I just don't want to do it here something git ignore and all. I will do it in my Git. So I just create this repository, and we are done here. Okay, the branch ignore, this is my repository here. Okay, it has got nothing but the readme file and nothing else. Now I want to copy I want to clone this into my, technically speaking we call it clone this into my Git. So I will say here, copy this here, github.com branch ignore.git. This one I copy HTTPS address of this repository, and I go to the VS Code. Okay, maybe in a VS Code I just create one folder. Maybe I just create one folder. Let me Javed Qureshi. Okay, let me open up the folder, some folder. Maybe I go to the desktop maybe, and I create new folder and call it branch maybe, and say create, and open this folder right now. Okay, now I want to download that repository into this folder, and I can say here I can go file, terminal here, and new terminal. That's command and backtick. You will just see the shortcut, so remember that thing. For the Mac it is command and backtick, okay, to open up our terminal. Okay, but I don't know why it's not, is it a command and backtick? Yeah, it's command and backtick, but backtick is not working in my cases. Yeah, it's control and backtick, sorry, it's control and backtick. You just see in your case it will also be control and backtick, so it's a control and backtick, not command. Okay, the arrow sign is the control. So to open up the terminal, I'll just go ahead terminal and new terminal, simple as it is. Now here I want to clone that repository into my things, but before that I have to do some configurations, right? But actually I have done it last time also. It will be already there. So if I say here git config, and I say here mice list, okay, so it's telling me even the branch is this, the username and this and that. But if you have a different username and you want to do it for different username, you can anytime come up and do git config, okay, mice global, okay, and then user dot name, then in double quotes you write whatever the username was. In my case Junior Srinagar, so I can do it again, and if I was wrong I can correct it. Similarly I can use the git config, and then I can say user dot email, whatever the email, if there's a new email I can do that, no problem. Okay, and then you can chuck. Even you are on a branch, which is mean, lastly before 2020 it was called as a master. Sometimes it creates master if it is not an updated version and all. You can change. Last time the Amir had a master stuff, so you can change that master. If you want to change from master
to the, if you say git branch, for example, here if I say git branch, so definitely it won't happen here. Why? Because this branch is not a git repository, so I can't tell me that I can't tell what is the branch of this. First of all, I need to download my repository into this repository. So how I will do it? Can anyone tell me Clone. how I do? Git Clone. clone, and after that I need to paste that address. Now when I give it a go, now branch ignore has come up in that branch ignore which we created in a GitHub, that has come up here, right? As you could see, and it has nothing but a readme dot whatever dot md in it. Okay. Now if I say here ls minus al or a, it will give you what kind of, it has dot, it has double dot, it has this thing also. Okay. If I say ls minus a, right, but it is not showing me the git. Why is not showing me the git? It should have shown a dot git. Why is it not showing the git? Tell me. अगर रिपोजिटरी तो गिटहब में तो रिपोजिटरी ऑलरेडी होती है ना गिट. Why is not showing me? Tell me. So maybe it will have different versions. No. Because right now I am in a folder branch. Branch is not a git repository. This branch ignore is a git repository. So I need to first go into this folder. So I'm going to say cd branch ignore, right? Then if I say ls minus al, means all with the list. Now the .git is there. It is a repository. So if I say anything, any command of the git, it will work here, because this branch ignore is a git repository. Okay. If you want to see this here, the .git which was hidden, we can do the exceptions. We have the exception. We can see the file we can exclude it from being hidden, right? So for that we need to go to the settings. Okay, we need to go to the settings. I say the settings. What is the shortcut of settings? You should remember the shortcut of settings also, and so that you can become quick. It comes quickly, like here. It is the command and comma for me. You just see what is that. Say command and comma to open up the settings. Got it? Open up settings with me, you guys. Command and comma, then write the exclude. Okay, here is the file exclude, and the git is here, which is there. So I just cross it. Okay, so that it will come up here. Now you can see, now the git has come up here. It's no more hidden. I can see that. And last time I asked you the question, and if Lava gave me the answer, that's correct. That I told you that if I have a common folder, I have any folder here, like I had a branch here, it is not a repository, while the which comes from the GitHub is already repository, because from the GitHub they add .git. But here, if I want anything, for example, I want to remove this git. If I delete this git from here, okay, if I delete this git from here, will this be the repository then? Git repository? If I say remove minus rf dot git, I removed the .git, gone. So if I run any command now of the git, okay, for example, I say git status, it's not gonna work. Okay, it's not gonna work, definitely. Why? Because it's not anymore. This branch ignore is a simple folder now in your desktop. It will have no version control. It will have nothing else, because it's not a git repository. So if I want to make this as a git repository, what should I do? Anyone tell me? How to make Git init. Initialize. Yes, I have to say git init, right? I have to say git init. If I say git init, what will happen? The .git comes up. Okay, as you could see here. Okay, now this is a git repository. I can have version control in it. I can have I can run any, for example, I say git status, for example, git status. Okay, it's gonna tell me that there are things here. This is the untracked file right now, because
अब हमने बनाया ना गिट, इस गिट को पता नहीं है वर्जन कोई नहीं, जो जो वहाँ से आया था, कहाँ से, जो आपका उधर से आया था, आई मीन फ्रॉम द गिटहब, उसमें गिट रिपोजिटरी में ऐड हो चुका था, कमिट हो चुका था, वो चीज़ें हो चुकी थी। तो वहाँ इसलिए वो जब यहाँ पे आया था कि इस गिट में मैं रिपोजिटरी में वो रीडमी फाइल थी, लेकिन अब नहीं है यहाँ पे। जब मैंने इसको गिट बनाया इसके लिए नई फाइल है, क्योंकि ये गिट जो मैंने बनाया यहाँ पे ये फ्रेश है, ये रिपोजिटरी एम्प्टी है, ठीक है। नाउ आई हैव टू डू टू थिंग्स, फर्स्ट वन आई हैव टू डू व्हाट, ऐड एंड commit, right? So I have to say git add and git commit, okay, and -m give the message making it a repository. So I got one repository, whatever that is. Now if I say git status, now I have nothing to commit here, okay. Now if I say git branch, which was not working previously because I was in the branch folder, which was not a git repository, but this one is a git repository, branch. Now it is telling me it is a main, but what if I want to change this? If it was master, for example, in Amir's case, and I want to change it, or I want to create a different name for the main, that's your choice, but I should keep this strong recommended to keep it main, because people, by that we know the default one, the branch is main branch. So but if at all you want to change it, you can say git, then you say branch, branch, then you say -m to rename it from main to master. Now if I say, बेसिकली 2020 से पहले ना मास्टर ही कहते थे हम मेन ब्रांच को, अब फिर उन्होंने चेंज किया, तो वो कोई मसला नहीं है, चाहे मेन हो मास्टर हो, दैट डजंट मैटर, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या नाम है इसका। नाउ इफ आई से गिट ब्रांच, नाउ इट इज़ टेलिंग मी द, और स्टार का मतलब है कि आप इसी ब्रांच पे हो, आप किस ब्रांच पे खड़े हो, स्टार का मतलब वही है, बिकॉज वी कैन हैव मेनी ब्रांचेस, आई विल शो यू हाउ, okay, but I want to do it back again. I just want to keep the main branch. I will say here change the master to the main, okay. and जो हमने यहाँ पे किया ना कि हमने कहा कि git config किया हमने, okay, इसमें एक भी आप ये करना चाहिए आपको कि अगर किसी सूरत ये मास्टर बना देता है या कुछ, आप git को बोलो कि git को आप config करो, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने दी ना कि आपका यूज़र नेम क्या है, आपका ईमेल क्या, वो इसमें फिर स्टोर रहता है आपके इसमें। जिस तरीके से आपने जब पुश किया होगा ना, तो फिर वहाँ पे आपको ऑथराइजेशन करनी पड़ती है, मैंने की हुई है तो मुझे बार बार नहीं करनी है, मे बी आपको जब आपने किया तो वो आपको ऑथराइजेशन करने को बोलेगा, उसमें वो सारी चीज़ें आपने की होंगी मेरे ख्याल में। बोला उसने, किसी ने किया वो, जिसने पहली बार किया, हाँ जिसने पहली बार किया तो वो ऑथराइजेशन मांगेगा ना, हाँ जी, वो ऑथराइजेशन मांगेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसी तरह से हम क्या करेंगे काम, मैं ये करके रखूँगा कि भाई साहब जो कॉन्फ़िग है, जो ग्लोबल का मतलब होता है कि जितने भी अकाउंट्स मेरे उन सब के ऊपर लागू होगा कि इनिट जो आपका है डिफ़ॉल्ट ब्रांच, इनिशियलाइज डिफ़ॉल्ट ब्रांच जो आपकी होने वाली है ना, उसको मेन ही रखो, मास्टर नहीं रखना। ये मैंने इनिशियलाइज़ किया उसका, ये इस कॉन्फ़िग ग्लोबल जो मेरा है उसमें मैं इनिशियलाइज़ करूँगा डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन रखना, तो इससे पहले ही मेन रखेगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब मैं क्या करूँगा काम, यहाँ पे एक बात याद रखना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे फ़ाइल बनाऊँगा ना, वो फ़ाइल आपके इसमें नहीं बनेगी, किस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है, न्यू फाइल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे index.html। एक बात का ख्याल रखना है, क्या ये index.html ब्रांच में है या कि ये बाहर है। अगर मैंने देखो ब्रांच क्लोज़ किया, ये बाहर है, तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो यहाँ पे रखते हैं, फिर कहते हैं कि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो ऐड ही नहीं हो रहा, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये अनट्रैक्ड दिखाना चाहिए, यहाँ पे यू दिखाना चाहिए सीधे, अगर मैं यहाँ पे फिर इसमें कुछ लिखूँगा अभी वगैरह, यहाँ पे यू आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरे गिट जो मेरा फोल्डर है, गिट फोल्डर जो मेरा है, जो रिपोजिटरी बनने वाली है बाद में, उसका हिस्सा नहीं है। सो इट शुड बी इन दिस फोल्डर, ओके, यू नो मूव इट,
Okay, you have to move. Now the moment you moved inside this git folder, you see the u comes up. अब इस पे git की जो है ना, git is watching. now watch dog इस पे लग गया. जो watch dog है वो लगता है इस फोल्डर पे जो कि जिसमें ये git है, जो जिसमें git डॉट git है उस पे लगेगा फाइल्स पे. अगर हम बाहर बना रहे हैं तो उस पे नहीं लगेगा. ये याद रखने की बात है. नाउ यू सी इट इज टेलिंग मी इट्स अ यू, इट्स एन अनट्रैक्ड. यानी कि अगर मैं इसके ऊपर काम करूँगा कि मैं इसको कहूँगा भाई साहब गिट स्टेटस मुझे बता दो, STATUS, तो ये बताएगा कि भाई साहब आपको एक फ़ाइल है जो अनट्रैक्ड है. अनट्रैक्ड का मतलब क्या है कि आपके फोल्डर के अंदर फाइल है और आपने ना इसको स्टेज किया हुआ है ना कमिट किया हुआ है. तो कमिट के दूर की बात है, आपने इसको स्टेज भी नहीं किया है अभी. स्टेज करने के लिए क्या करते हैं हम? शाबाश, गिट ऐड करते हैं. ठीक है ना. अब यहाँ फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक p टैग है और उसमें मैं कहता हूँ हेलो व्हाटएवर, एनीथिंग यू लाइक टू कॉल इट. अब मैं क्या कर रहा हूँ कम, इसलिए ये खास ख्याल रखना कि फाइल्स इसी ग्रीन ब्रांच इग्नोर में रखना. अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल्स बनाता हूँ. फ़र्ज़ कीजिए मैंने कुछ ऐसी फाइल बनाई यहाँ पे, जैसे मेरे पास प्रेफरेंसेस हो गई, सेटिंग्स हो गई, पासवर्ड्स हो गए या API कीज़ है. ये बहुत सारे फाइल्स मेरे हो सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि ये मुझे, मैं ये भेजूँ कहाँ पे. आई डोंट वांट कि मैं इनको भेजूँ अपना उस पर, है ना, जो मेरा ये है क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो मेरा गिट हब है उस पर भेजूँ मैं इसको. आई डोंट वांट टू डू दैट. सो क्योंकि मेरा उसमें API कीज़ है, वो तो फिर मेरा सारा ही वो मेरी ऐप ही क्रैक कर देगा मेरी लास्ट में कोई बंदा. ठीक है ना. 1 second, I will help my father 1 second. Give me a second. क्या थोड़ा पानी देखो दवा क्यों होता है. हाँ चला ठीक. इन्फेक्शन इन्फेक्शन है शायद ना खुद yok mu? Ha. Peki şuna? Tamam gel. Tamam. Patrão. Okay. Okay, coming back. अच्छा जी, कोत हुए थे इसके सुना? What I was telling? हाँ, क्या बोल रहा था मैं कि अगर मेरे पास प्रेफरेंसेस है, मेरे पास सेटिंग्स है, मेरे पास पासवर्ड्स है, एंड आई हैव मेनी मोर थिंग्स लाइक API कीज़ स्पेशली. सो जैसे हम यहाँ पे फाइल्स बनाएंगे, मैं यहाँ पे पहले ब्रांच इग्नोर को ही सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इसमें बनाऊँगा मैं फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ पासवर्ड डॉट TXT. अब मैं टेक्स्ट बनाऊँगा या कुछ और भी फाइल बना सकता हूँ, इट डजेंट मैटर. अब मेरा इसमें पासवर्ड है व्हाटएवर. Then I am creating a new file again. I got preferences .txt. ठीक हो गया. इसमें भी ये मेरे preferences कुछ हैं वगैरह वगैरह, JSON files and all. Okay. I can make say for example API keys .txt. अब मैं TXT बना रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए. आपको कोई भी फाइल हो सकती है किसी भी डॉट करके, जो भी आपका मर्जी है. और मैं नहीं चाहता, देखो ये अनट्रैक्ड सारे हैं, ये अनट्रैक्ड हो गए ये सारे. ठीक है ना. और अब मैंने बनाई फॉर एग्जाम्पल API कीज़, पासवर्ड्स मैंने बनाए, प्रेफरेंसेस मैंने बनाए, और क्या हो सकता है, सेटिंग्स हो सकती है मेरी settings.txt. अब मैं नहीं चाहता कि ये मैं ना ग्लोबल भेजूँ, ये मेरे पर्सनल सीक्रेट फाइल्स हैं, अपनी है. सो ये चीज़ नहीं भेजनी मुझे. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा काम, पहले मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा यहाँ पे, उसका नाम रखूँगा मैं .gitignore. ठीक है, ये मैंने रखा विदाउट एक्सटेंशन. ये जो गिट इग्नोर मैंने रखा, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ये भी अनट्रैक्ड है एज यू कुड सी. इसमें मैं कहूँगा एक एक करके उन सब फाइल्स का नाम जो मैं ट्रैक नहीं करना चाहता, जिनको मैं कहता हूँ कि गिट को कि भाई इनको एक्सक्लूड कर लो, ये मुझे ऐड नहीं करने, ये मुझे कमिट नहीं करने, ये मुझे पुश नहीं करने, ये मुझे अपने लिए हैं, ये मेरी सेटिंग्स हैं, ये मेरी प्रेफरेंसेस हैं, ये मेरी API कीज़ हैं, इनको मुझे नहीं भेजना उधर. समझ में आई बात. सो यहाँ पे फिलहाल सारे टेक्स्ट है ना, तो मैं star.txt कह सकता हूँ. देखो द मोमेंट आई से star.txt, ओके, एंड आई से सेव इट, कमांड S मैंने किया, सेव किया.
और ये देखें आप कि api.text इसका u भाग गया, password.text इसका u भाग गया। तो अगर मैं ये हटाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे जब मैं इधर जाऊंगा यहाँ पे, एंड नाउ आई से git status, ओके। द मोमेंट ऐसे git status बोल रहे हैं भाई साहब ये सारी फाइल्स है ना आपकी अनट्रैक्ड है, इन्हें आपको एक काम करना चाहिए, इनको आपको git ऐड करना चाहिए, यू शुड ऐड देम टू द स्टेजिंग एरिया, राइट। स्टेजिंग एरिया में जाते हैं ना ऐड होके। तो द मोमेंट आई से हियर नो star.txt कि इनको गिट इग्नोर का मतलब है कि ये जो है बंदा है इस पर गिट जो भी इसमें चीज़ होती है उसको गिट इग्नोर करता है, इसलिए इसका नाम ही है डॉट गिट इग्नोर, और हिडन फाइल होती है वगैरह वगैरह। सो एंड सो ऑन। अब इसको अब सेव करूँगा मैं, यहाँ पे बोलूँगा मैं स्टेटस। अब गिट आपको पूछेगा ही नहीं इनके बारे में जो txt फाइल्स थी। अब देखो ये दो ही फाइल बोलता है, एक तो गिट इग्नोर खुद वाली और index.html। अब दो ही फाइल्स आपको है जो आपको स्टेज करनी है। नाउ आई कैन से सिंपली व्हाट गिट ऐड। किसी को समझ नहीं आ रहा हो बताएगा प्लीज। एंड गिट क्या करते हैं फिर कॉमिट, क्या -m। अरे यार बताओ ना, गिट इग्नोर क्रिएटेड, ये मेरा कमेंट की मैसेज है एंड ऑल दैट, राइट। ठीक हो गया। हाँ जी, किसी को इशू इसमें गिट इग्नोर में समझ आ रहा है परफेक्टली? हेलो, इसमें वॉइस गोइंग और नॉट? Yes, sir. इंटरनल में म्यूट, हाँ Yes, sir. आ रही है। हाँ हाँ यार, सो मत ना, डोंट स्लीप, सर स्टे। यहाँ से और बताए जो आपने फाइल्स बनाई ना हाँ और हाँ फिर सेव की, जी जी बोले क्वेश्चन यहाँ से पूरा। मैं सर आपने फाइल्स बनाई ना एपी कीज और इन पासवर्ड प्रेफरेंस सेटिंग्स, हाँ फिर आपने सेव किया डॉट डॉट, यहाँ से और समझाइए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं कि हम इसको गिटहब पे डालने जा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे सारे लोग देख सकते हैं इसको। अब अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जैसे पासवर्ड है, प्रेफरेंसेस हैं, सेटिंग्स है, एपीआई कीज़ हैं, या कुछ कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आप शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, बात में आई तो। यस सर। लेकिन यहाँ तो गिट में है, गिट तो आपको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा भाई ये ऐड कर, है ना, इसको ऐड कर। वो पुश करने से पहले बोलेगा भाई तेरे को इतनी फाइल्स हैं ऐड करो, इनको ऐड करो, है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है ना। तो लेकिन उनको अगर हमें इग्नोर करना है, हमें गिट को बोलना है कि नहीं इनको छोड़ छाड़ तू इसको, ये नहीं है तेरे लिए, ये मेरे अपने हैं फाइल्स, ये सीक्रेट फाइल्स हैं। तो उसको लिए हमें यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक इसमें न्यू करेंगे, लिखेंगे डॉट गिट इग्नोर। उसके अंदर जो फाइल मेरी मुझे इग्नोर करनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे index.html का मैं index.html भी यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, तो ये इसको भी इग्नोर करेगा, ये पूछेगा ही नहीं कि इसको ऐड मत करो। अब मैंने star.txt लिखा, उसमें ये जो बंदे हैं AP जिसका नाम भी txt है, फिलहाल txt है ना, अगर कुछ और होता docx होता, मे बी मेरे पास एक और फाइल है docx, उसमें इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल info डॉट docx मेरे पास है, ठीक है, ये अनट्रैक्ड में आ गया। लेकिन गिट इग्नोर में अगर मैं कहूँगा भाई जो आपका है star.docx, तो उनको भी इग्नोर कर तू, ठीक है, उनको भी क्या कर, इग्नोर। तो जो ही मैंने ये सेव किया तो वो भी इग्नोर हो गया ना, इसमें अनट्रैक्ड भाग गया ना यहाँ से। तो उसका मतलब ये है कि जितनी भी फाइल्स आपको इग्नोर करनी है, आपको आगे नहीं भेजनी है, गिट को बोलना है कि भाई साहब इनको छोड़ो, ये आपके लिए नहीं है, वो गिट इग्नोर में मेंशन करनी पड़ेगी, सिंपल एज इट इज़। हो गया, होगी बात। अब हमें काम क्या करना है कि हम अब दूसरा चीज़ है कि दूसरी चीज़ हम आ गए ब्रांचिंग पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं पहले इनको कमेंट करें, हमें अगर गिट स्टेटस बोलेंगे, हमें गिट स्टेटस, तो ये मॉडिफाइड होगी गिट इग्नोर, इसको हम करेंगे फिर ऐड एंड कमेंट, ठीक है ना, गिट ऐड डॉट मीन्स सारा, तो गिट कमिट -m, और यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या, गिट इग्नोर अपडेटेड, क्योंकि इसमें आप हमने docx भी लगाया ना, अपडेटेड व्हाटएवर। many books write that we should write this message in a present tense, but I don't believe in that, क्योंकि ये चीज़ हमने की हुई है तो उसको प्रेजेंट टेंस में क्यों कहूँ मैं, पता नहीं वो क्यों कहते हैं, एनीवेज उनका अपना स्टाइल है।
एनीवेज तो हो गया ये। अब मैं कहूँगा गिट स्टेटस, तो वी हैव नथिंग ऑन आवर ब्रांच टू कमिट, नो ब्रांच ऑन ब्रांच में नथिंग टू कमिट, working tree clean. Now it is clean, it's better, we can push it and all, but I don't want to push it today, but I have to do something else, right? तो फिलहाल अगर हमें देखना है कि हमने क्या क्या कमिट किया, उसके लिए कौन सी हमारे पास कमांड होती है? git log. git log, जी हाँ बिल्कुल git log होती है, git log। अगर लॉग करेंगे तो ये आईडीज हमारे पास है ना, हर एक और ये हेड देखो, हेड इज लाइक, दिस इज लाइक मानो स्टैक है, स्टैक टॉप, जो टॉप पे कमेंट होगा उसका यहाँ पे हेड होगा लिखा हुआ, हेड मेन यहाँ इसके साथ, यानी कि टॉप कमेंट है। उसके बाद ये उसके पहले यानी गिट इग्नोर जो अपडेटेड आया ना वो लास्ट में आया ना, तो वो आपका टॉप ऑफ द स्टैक है, और बाकी इसके नीचे हैं। एंटर करें, नीचे जाएं, ये दिखाता जाएगा। एंड जब आएगा यहाँ क्यू दबाएं, जो आदों को परेशानी हुई थी ये एंड से नहीं भागना, तो क्यू दबाएं तो बाहर आ जाएगा इससे, ठीक है। तो क्यू टू एग्जिट। अगर मैं एक ही के बारे में देखना चाहता हूँ, मैं कहूँगा मैं इस आईडी को कॉपी करूँगा, कमांड सी, देन आई कैन से गिट शो, ओके, कमांड वी। अब इसने कहा कि भाई इसका जो ऑथर ये था और इस डेट पे हुआ, उस वक्त क्या वो मैसेज क्या थी, उसकी डिफरेंस भी बताएगा कि उस वक्त क्या किया था क्या नहीं किया था, एंड ऑल दैट, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। दिस इज़ द गिट शो। और अगर हम कहेंगे गिट लॉग -2, तो ये खाली 2 दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको 10 15 20 आपने की है, लेकिन आप चाहते हो कि लास्ट वाली 2 मुझे बताओ, तो गिट लॉग -2 करें आप। अगर हम कहेंगे गिट लॉग -p, तो उसमें क्या होगा कि ये डिफरेंस भी बताएगा कि अगर आपने चेंज की हुई है कहीं पे, ठीक है, तो वो चेंजेस भी आपको दिखाएगा, ठीक है। ये सारी वो चेंजेस दिखाएगा, अगर आपने चेंजेस की है वहाँ पे तो वो चेंजेस भी आ जाएंगी आपके पास वहाँ पे, एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे इसने दिखाया कि आपने ये चीज़ ऐड किया था इसमें, तो पुराने में पहले में नहीं था, तो फिर आपने ये इसमें ऐड किया, या जो भी आपने चेंजेस की होंगी डिफरेंसेस, तो वो डिफरेंसेस भी दिखाएगा क्यू टू एग्जिट, ठीक है। गिट लॉग हो गया, गिट और क्या इसमें होता है, शो भी हो गया। एक स्टैटस होता था गिट लॉग माइनस स्टैट, तो इसमें भी ये आपको इसमें डिफरेंसेस नहीं आ जाएंगी, ऑथर आ जाएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी, एंड यू कैन चेक इट आउट कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे, यानी कि आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हो अपने कमेंट्स के बारे में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है कि अगर आप ये करना चाहते हो, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो मैं कह रहा हूँ कि हमें ब्रांच करनी है, तो ब्रांच होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ ए ब्रांच। अब हम ब्रांच क्यों करेंगे, एक और चीज़ में अगर हम कहेंगे गिट डिफ, अगर हमें किसी चीज़ का मॉडिफिकेशन चाहिए तो गिट डिफ कर सकते हैं। सो एनीवेज ये कमांड तो अब हो गई। अब हम अगर हम चाहते हैं कि खुद को इससे इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ना, कहाँ गए, ताकि हमारा राइटिंग वाला वो दिखे। अरे यार इसको क्या मसला है, बीच में चला जाता है। ये रहा हमारा ये छोटू मैन, इसको हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा एपिक पेन है, तो एपिक पेन को हम राइट्स करेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने जो कमेंट्स किए एज यू कुड सी दिस, जो हमने कमेंट्स किए जो येलो में थे सारे कमेंट्स, ठीक है ना। अगर हम एक और चीज़ आता है गिट लॉग, यहाँ पे करेंगे हम गिट लॉग माइनस 1 लाइन ही आता है शायद, हाँ आ रहा है। देखो इसमें फ़िलहाल 3 ही कमेंट हो गए हमारे पास, है ना। ये कमेंट्स हैं 1 2 3, और ये 3 कमेंट्स जो है हेड देखो कहाँ पे, हेड है लास्ट वाले कमेंट पे जहाँ आपने गिट इग्नोर को अपडेट किया। उसके पहले किया था गिट इग्नोर क्रिएट, उससे पहले किया था मेकिंग इट ए रिपोजिटरी और एंड ऑल दैट, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने चेंज की थी, और 3 आपके पास कमेंट्स हैं, यानी कि ये 3 कमेंट्स जो है ना ये आपके मेन ब्रांच पे आ रहे हैं। ये आपकी मेन ब्रांच है, ठीक है ना। अब मेन ब्रांच पे आपके 3 कमेंट्स हैं, अपने
कमेंट नंबर 1 किया, कमेंट नंबर ये पहला था, फिर दूसरा था, फिर ये तीसरा था। 3 कमेंट्स आपने किए हुए हैं। ठीक, मानो इसमें इस जो मेन ब्रांच है इसमें आप HTML का स्ट्रक्चर बना रहे हो। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपने यहाँ से आई इफ़ला और यहाँ से आया आमिर। मैंने बोला इफ़ला तो एक काम कर, तो इसकी CSS पे काम कर। तो एक नया ब्रांच मैं बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं स्टाइल। ये मेरी मेन ब्रांच है। अब मेरे पास 2 ब्रांच होंगी, मेन और स्टाइल। मैंने कहा इफ़ला तो एक काम कर, तो स्टाइल पे काम कर। तो जब मैंने स्टाइल ब्रांच किया, इसमें जितनी भी ये चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो थी, ये इफ़ला को भी दी जाएंगी। ठीक है, इफ़ला विल हैव ऑल दीज थिंग्स एंड शी विल क्रिएट style.css। ठीक है, फाइल, न्यू फाइल जो कि मेन ब्रांच में नहीं थी, जो स्टाइल में थी। और उसके बाद वो चेंजेस करती जाएंगी और अपने कमेंट्स वगैरह वो करती जाएंगी। सो छ करा अपडेट वर्जन, सो छ कमेंट अख करा, तम कर वारिया कमेंट, तम कर CSS फाइल कर तम क्रिएट टोटल कंप्लीट। ठीक, यहाँ से आमिर आया, उसको भी ये सारे स्ट्रक्चर दिया जाएगा, लेकिन उसके पास स्टाइल की फाइल नहीं है क्योंकि स्टाइल का फाइल मेन ब्रांच में नहीं था। समझ में आई? Because main branch was not having the style file, style.css, so the Amir won't get the style.css, right? But he will get the basic HTML and all. And I'm telling Amir तो एक काम कर, तू जावास्क्रिप्ट पे काम कर। मैंने इसको दिया, इसने जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट की, इसने किया script.js फाइल क्रिएट एंड he started working on the जावास्क्रिप्ट। उसने अपने अपने कमेंट कर रहा है अपनी ब्रांच पे, और इसने अपनी ब्रांच खड़ी की पहले जिसका नाम था फॉर एग्जाम्पल JS। ठीक, अब मेरे पास 3 ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांच, और मैं मेन ब्रांच में आगे भी जा सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। अगर आप मेन ब्रांच के ऊपर हैं और आप और काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इट डजेंट मैटर। मुमकिन है हमने CSS हम बनाएंगे ना जनरल फाइल से, P टैग के ऊपर काम करना है, तो मुझे यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मैंने और चीज़ें ऐड की इसमें, नॉट एन इशू, आई कैन गो ऑन द मेन ब्रांच भी चल रहा है इन द मीन टाइम। लेकिन अब क्या होगा कि आई कैन रिव्यू। अब इफ़ला ने कहा कि आई एम डन एंड आमिर ने कहा आई एम डन फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल आमिर भी काम ही कर रहा है, इफ़ला ने कहा मैंने CSS कंप्लीट किया हुआ है एंड ऑल दैट। सो इट्स नाइस। नाउ I can review the work, and if I'm satisfied, oh it's okay, then I can do what? I will merge this with my main branch and create a new commit here, wherein I will have all the things of the main, plus I will have this style.css created by इफ़ला। तो इफ़ला बेटा ने जो मुझे काम करके दिया, okay, that sweet work of her, I will take on, first I will review obviously, and then when I feel this is satisfied, I will merge that with my main branch. Now my main branch will have the style.css from the iffla, and later on I can go on and delete this branch altogether. Okay, I will delete this whole branch later on, I don't need it anymore now, right? I can do that, but if I want to keep, I can keep that, that's your choice. Similarly, this Amir has done a work on his JavaScript and he has created an, if I find it dissatisfactory, I can merge it with this. Now my main branch will have the HTML files, it will have CSS files created by iffla and JavaScript file created by Amir, and everything will be here and everything work fine together, right? And this is what is called as a branching, and this is very beautiful thing because of the Git, and that is why every company asks you questions about the Git, because everybody is using Git. Many people are not using GitHub. Okay, there are many other versions we can have. Okay, like there is a Git bot, there is many more where you can have the repository online, but Git, everybody uses Git. Okay, getting what I'm saying? Yes, sir. Any questions before I do it practically? You got the branching concept? Simple. It's very simple, I guess. आगे branching सर एक क्वेश्चन है कि अगर मेन से जो मिलता है ना ब्रांच को, जो ब्रांच में काम करते हैं, हाँ, ठीक है, अगर आप ब्रांच भी अपडेट होता है तो वो उस ब्रांच वाली को भी अपडेट होता है, या उसको फिर वो लेटर ऑन नहीं उसको कहाँ अपडेट होगा,
उसने तो तो फिर उसने वो जो तो वो कैसे फिर आगे काम करेगा? अगर आप कह रहे हो कि आपने क्या किया, मतलब HTML पे अपडेट हो रहा है और हम हाँ CSS अभी बना रहे हैं, तो अगर वो इफेक्ट उसमें भी दिखाना है तो वो लेटर ऑन कैसे फिर उस पे नहीं, फिर मर्ज वो हो पुल जाएगा? करेगी ना, वो हाँ पुल वो करेगी। पुल कर सकते हैं, हाँ वो हाँ तो है, बट उसको फिर बताना पड़ेगा ना कि पुल करना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब ये तो एक ये होगा ना कि दिस विल बी इन अ कॉम्बिनेशन एंड डूइंग थिंग्स, देयर विल बी एन अपडेट ऑन द कंपनी दैट वी हैव क्रिएटेड अ मेन ब्रांच एज अपडेट्स, पुल इट, पुल रिक्वेस्ट तो आएगी ना, पुल रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा व्हेन यू पुल, तो फिर वहाँ से आपको अपडेट वर्जन आ जाएगा गिटहब से, गिटहब है ना मेन रिपोजिटरी, हाँ हाँ सर, आगे सर। वहाँ से तो ले सकते हैं। फिलहाल हम बेसिक सीखते हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो हमें क्या काम, अभी हम किस ब्रांच में हैं, ऐसे गिट ब्रांच, BRANCH, मैं किस ब्रांच में हूँ पाजी, मेन पे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू, हाँ जी, व्हाट आई हैव टू डू नाउ, आई हैव टू क्रिएट, We have to create another branch. we have to create another branch, for example, ठीक है ना। So I will say git branch, I will say git branch, and maybe I call it, I shouldn't call it ifla, I should call it style, for example, or whatever, anything you like to call it, doesn't matter, it's just a name. So if I say now git branch, and I am having two branches, main and style, and the green one with a star is where I am right now, okay, and this, but I have two branches now, right? Okay, similarly if I say git branch, and I am saying JavaScript, for example, and now I got three branches. If I say git branch, and now I got three branches, JS, main and style. अभी मैं किस पे हूँ, Main. अभी मैं मेन पे हूँ, ठीक है ना। Now I want to work, say for this was the console and we want to work on the style now, okay. How I will work on a style, because if I work anything here, if I do anything here, for example, I use the p tag here, I'm saying another p tag, that I should say salam rather than hello, for example, command S, where is it happening, In main branch. it's happening in the main, right, it's not happening in the style, right. So what shall I do now, Switch branch. switch branch. First let me commit, I got a little doubt because of Amir's question. I want to make sure that she's will the style is getting the updates or not, or should we pull or it is getting update, huh? Let us confirm that, क्योंकि अब हमने स्टाइल बनाया है ना, ब्रांच बनाई, लेकिन हमने चेंज किसको की, मेन ब्रांच को, है ना। इफ आई से git add डॉट, हो गया ऐड, स्टेजिंग एरे में आ गया, देन आई से git commit, and then I say minus m, and then I say who is updated, index is updated, huh? Index updated, for example, right, okay, enter, हो गया एक फाइल, एक कमेंट हो गया, एक और कमेंट आ गया ना, ठीक है ना। इफ आई गो टू आई वांट टू स्विच नाउ द ब्रांच, राइट, आई वांट टू गो टू द स्टाइल एंड वर्क ऑन अ स्टाइल ब्रांच, ठीक है, जिसमें मैं CSS, आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल वर्क ऑन अ CSS एंड कंप्लीट माई CSS होल फाइल एंड हैव टन्स ऑफ कमेंट्स एज मेनी एज आई लाइक, ठीक। तो देन आई शुड स्विच द ब्रांच, दैट इज कॉल्ड द गिट चेकआउट, CHECKOUT, चेकआउट। किस में जाना चाहता हूँ मैं, उसका नाम क्या रखा था मैंने, स्टाइल। टू कन्फर्म, ये लिख रहा है बाई स्विच टू ब्रांच स्टाइल, बट टू कन्फर्म आई कैन से गिट ब्रांच। नाउ हु विल हैव एन who will be green and who will have a asterisk, style. But in the meantime, if you look at your main, Change it. if you look at a main, what is happening, that salam is gone, right, क्योंकि आप आगे गए ना उससे। आप अगर आप कहोगे गिट स्टेटस, आप कहोगे गिट स्टेटस ऑन ब्रांच स्टाइल, नथिंग टू कमिट, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका मेन जो है, जो मेन ब्रांच है, वो एक कमेंट आगे चला गया, वो एक कमेंट क्या चला गया,
ठीक है आमिर? यस सर। क्योंकि जो आपका जो मेन ब्रांच आ रही थी यहाँ पे, वो एक को वो यहाँ पे आ गया इस वाले बंदे पर, है ना? यस सर, यही मेरा क्वेश्चन था ना, ये एग्जैक्टली पीछे रह जाता है ना। बिल्कुल, ये तो इस वाले बंदे पे आ गया ना ब्लू, ये यहाँ पे आ गया। लेकिन आपका जो स्टाइल है उसने ये वाली चीज़ें ली थी, यहाँ तक जो चीज़ें थी वो ली थी इसमें, है ना? सो दैट मीन्स दे हैव टू नो पुल from the GitHub. Here on the main, I have to push, right? I have to what? Firstly push on the GitHub, and this guy has to pull so that he can get the things. Now, whatever, we got it perfectly. Let's delete this now. No, keep it like that. Let's close it for a while and keep it on side. एरो पे तो काम भाई यार, इसको हो क्या गया? सर बिना पुश के हम उसको ये पुल कर सकते हैं वो, क्योंकि वो अभी हमारी लोकल। अगर आप बिना पुश के करोगे तो बैंक में पुश करने से ही तो जाएगा, ठीक है ना? आपने 10 चीज़ें पुश की हुई हैं, वो आपके गिटहब पे हैं। फिर आप लोकल में क्या कर रहे हो विदाउट, अगर आप लोकल में कुछ भी कर रहे हो ना यहाँ पे, यानी कि अभी जो भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये तो मैं इसी सिस्टम पे कर रहा हूँ। अभी तो गिटहब पे कुछ है नहीं। इफ़ आई गो टू द गिटहब, व्हाट विल हैपन देयर? मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमारी लोकल ब्रांच जो देखो ये है ना हमारा गिटहब, वहाँ पर तो वही रीडमी फाइल है ना खाली। अगर पुल करोगे तो इट विल रीड मी ओनली। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर हमें अभी वहाँ पर लोकली है ना, लोकल ब्रांच जो हमारी है, हाँ, जो मेन है, मेन ब्रांच, वो एक कमिट आगे चली गई स्टाइल से। हाँ, हम स्टाइल में भी वही चेंजेस चाहते हैं जो मेन में है अभी, लेकिन पुश नहीं किया हमने, लोकली है वो स्टोर। तो अगर वो पुल करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा ना। मैं वही बोल रहा हूँ, हम कैसे ला सकते हैं मेन की चेंजेस स्टाइल में? वही मैं कह रहा हूँ ना, पहले आपको वो पुश करनी पड़ेंगी ना। किस पे? अच्छा, पुश जरूरी है, पुश हाँ जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक है ना? या हम जब जब हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं, उसमें हम फोर्क करते हैं, वो अलग चीज़ है। बेसिकली जब अलग अलग कंप्यूटर्स पे हम काम करते हैं और ये करते हैं, फिर हम रिपोजिटरी लाते हैं, फिर हम फोर्क करते हैं। क्या करते हैं? फिर वहाँ पे पुल रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, जिसको पता ऑथेंटिकेट कैसे ना, अलग अकाउंट, ठीक है? यस सर। हाँ, उसके लिए अलग चीज़ हम पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे ना। जैसे फॉर्क यहाँ लिखा है ना, ये फॉर्क, ज़ीरो फॉर्क्स है ना, वो अलग चीज़ असल में है। जो जिसके ऊपर आप एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो एक्चुअली अलग चीज़ है, वो हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम क्या बोल रहे थे कि मैं अभी किस में हूँ? स्टाइल। यार ये भाग जाता है मुझे, 1 मिनट, 1 सेकेंड। इस एपिक पेन को कुछ गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड, डोंट हैपन टू दिस यार। मेरा ये वेस कोड छुप रहा है पीछे यार, इसको पकड़ के मैक्सिमाइज करो ना। ओके नाउ, ओके जी भाई साहब, हम किस ब्रांच में हैं इस वक्त? स्टाइल में, ठीक है? मैंने स्टाइल में एक काम किया, मैंने इसको टच मी नॉट कर दिया। टच किया मैंने style.css। टच से क्या करते हैं हम? फाइल क्रिएट। ये ज़रूरी नहीं आप यहाँ से करो, अब यहाँ से भी कर सकते हो, न्यू फाइल क्रिएट एंड style.css कर सकते हो। एंटर करो तो style.css बन गई। और अनट्रैक्ड बोल रहा है ना, अनट्रैक्ड है, ठीक है? और जब मैं इसमें जाऊँगा, मैं एक स्टाइल क्रिएट करूँगा। भाई पी टैग जो है ना, उसका कलर जो है वो रेड कर देना। और आप कर रहे हो CSS का सारा काम, जैसे बॉडी का काम, बॉडी का बैकग्राउंड कलर, आपने इमेज दे दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया आपने। हाँ, अब मैं सिंपल कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। कमांड S, इसको क्या हो गया, कमांड Z, कमांड S, सेव किया मैंने। और ये अनट्रैक्ड फाइल किसके अंदर है? स्टाइल के अंदर है। देखो, अगर मैं वापस जाऊंगा, आई स्विच द ब्रांच, ओके, टू द मेन, ओके, गिट चेकआउट से, किससे? यहाँ नज़र रखना है, जो ये है ना यहाँ पे स्टाइल डॉट सी, इसके ऊपर नज़र रखना, गिट चेकआउट। क्योंकि ये स्टाइल डॉट सी एस एस किस में बना? स्टाइल में। ये स्टाइल में बना, मेन में था नहीं।
तो अगर मैं मेन में जाता हूँ, मैं मेन ब्रांच पे जाता हूँ, तो स्विच टू मेन ब्रांच, तो ये तो गायब होना चाहिए स्टाइल जैसे, ये तो उधर ही रह गया. इट शुड हैव गॉन, सो आई डन समथिंग रॉन्ग. इफ आई से गिट ब्रांच, आप तो मेन पे हो और ये इसी में है, ये गायब होनी चाहिए थी ना, स्टाइल उसमें थी नहीं, है ना. सर अनट्रैक्ड फाइल नहीं होती है. अच्छा, ये अनट्रैक्ड फाइल थी क्योंकि हमने इसमें ये नहीं किया था. एग्जैक्टली. इफ आई से गिट क्या कहेंगे हम, चेकआउट. गिट चेकआउट किस में जाएंगे हम, स्टाइल में. ठीक है, वहाँ पे कहेंगे गिट स्टेटस, गिट स्टेटस. तो वहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस मेरे पास है. मैं वापस जाता हूँ मेन के ऊपर, गिट चेकआउट टू द मेन. हाँ, वहाँ मैं कहता हूँ गिट स्टेटस, गिट स्टेटस. हाँ, वहाँ भी दिखा रहा है क्योंकि ये फ़िलहाल मेन फोल्डर में है, हमने इसको ऐड नहीं किया स्टेज में. तो इसलिए आई विल गो टू द गिट चेकआउट टू द स्टाइल. ठीक है ना. उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, ऐड. ठीक है, मैं कहूँगा गिट ऐड डॉट एंड गिट commit, COMMIT -m, and the name is style file created, huh? Style file created. Okay, okay. Now इसका ये भाग गया ना ये. Now if I say git status and nothing to commit, now I go back to the git checkout. What is git checkout doing? Changing the branch. Now you see that file is gone. You see main, जब यूं ही मैं मेन में गया, आपका जो वहाँ पे जो स्टाइलस में देखो, इसमें क्रॉस आ गया क्योंकि इसके पास ये फाइल है नहीं. अब क्रॉस आ गया ना यहाँ पे, इसमें आ गया ना ये लाइन बीच में. व्हाट इज इट कॉल्ड, स्ट्राइक. और यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आपके जो यहाँ पे फाइल्स थी उसमें आपका style डॉट सी एस एस गायब है. द मोमेंट आई गो, जस्ट क्लोज दिस हियर, द मोमेंट इफ आई गो गिट चेकआउट टू स्टाइल, बिफोर आई प्रेस एंटर, मार्क वॉच हियर दिस थिंग एंड आई से एंटर, तो आपका यहाँ पे style डॉट सी एस एस वापस आ गया. ठीक है, जिसमें आपने ये काम किया था. अब ये जो style डॉट सी एस एस है, आपने बहुत बड़ी फाइल ली, उसमें बहुत सारे कमेंट्स किए हैं वगैरह वगैरह, और ये कहाँ पर है, where are these, this file. वे आप लोग सोए हुए हो क्या? स्टाइल में ना, स्टाइल ये स्टाइल ब्रांच पे है जो इफ्ला को हमने दिया था, और इसमें मैंने रिव्यू किया. उसके बाद में देखा ठीक है, अच्छा काम है, परफेक्ट है. अब मुझे क्या करना चाहिए काम, अब मुझे ये मर्ज करना चाहिए किसके साथ, तो पहले जिसके साथ आप मर्ज करना चाहते हो, पहले आप उस ब्रांच पे रहो. अगर मैं यहाँ कहूँगा गिट ब्रांच, आई एम ऑन द स्टाइल, सो आई कैन नॉट मर्ज. अगर मैं मर्ज यहाँ पे कहूँगा स्टाइल को करो मेन के साथ, तो स्टाइल के अंदर मर्ज होगा, बल्कि हमें मेन के साथ मर्ज करना है. सो आई शुड फर्स्ट गिट चेकआउट टू मेन. अब मैं मेन ब्रांच पे आ गया. इफ आई से गिट ब्रांच एंड इट इज़ द मेन, राइट. अब इसमें से स्टाइल गायब, एज यू कुड सी स्टाइल इज गायब, और यहाँ पे जो फाइल खुली थी ये इस पर क्रॉस मार के भाई साहब ये फाइल है नहीं कोई. ठीक है ना. अब मैं क्या करूँगा काम, मैं कहूँगा भाई मेरा स्टाइल का काम हो गया, परफेक्ट है. नाउ इट शुड बी मर्ज्ड विद द मेन ब्रांच, राइट. फॉर दैट व्हाट आई शुड से इज गिट, शाबाश, क्या बोलूँगा, गिट क्या करना है, मर्ज. किस ब्रांच को मर्ज करना है, स्टाइल. एंटर. एंटर क्यों नहीं हो रहा, अच्छा कुछ हुआ था गड़बड़. merge branch style, please enter a commit message to explain why this merge is necessary. Especially merges and update upstream into topic branch, line starting with hash will be ignored. मेरा तो हो गया. हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे, पता नहीं इसमें 2 बार कुछ हो गया ना, ये स्टक हो गया था. लेकिन अगर आप देखोगे ये मर्ज हो गया क्योंकि यहाँ पे स्टाइल आ गया ना मुझे.
ठीक है, यहाँ पे स्टाइल आ गया, ये आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, ये मर्ज हो गया, बट somehow there is some I don't know what, I will open another terminal, new terminal, git branch, कुछ बोल रहा था, ये पढ़ना था मुझे, क्या मसला था, I should go to first cd branch ignore because I am not in a folder. Now I'm in a branch ignore folder. Now I can say git status to see what is happening here. तो नई फाइल बन गई है style.css, जो कि अभी यहाँ मेरे को ऐड करनी है और कमिट करनी है किसके अंदर, अपने, हाँ जी, मेन ब्रांच के हाँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, ऑल कॉन्फ्लिक्ट, बट यू आर स्टिल मर्जिंग, इसने खुद कुछ, इसको कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, somehow there are some conflicts, right, and उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ये जो है उसने रिजॉल्व भी किया है। कभी कभार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आ जाते हैं, देखो आई डोंट नो व्हाई, इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं पहले, ठीक है, मैं इसको डिलीट करूँगा पहले, यहाँ पे मर्ज में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये मेन फाइल है, index.html है, और मैंने लाइन नंबर 2 पे कुछ लिखा था यहाँ पे, ठीक है, अब क्या हो गया कि यहाँ से आ गई इफ़ला ने क्या किया काम, उसने CSS तो बनाया, उसने इंडेक्स में अपने जो उसका इंडेक्स फाइल थे ना, उसमें जो उसका index.html था, उसमें इसी लाइन नंबर 2 पे इसने चेंज लाई, ठीक है। अब जब मैं मर्ज कर रहा हूँ तो गिट परेशान हो रहा है, क्या मुझे ये रखना है कि ये रखना है, मर्ज कौन सा करना है, कौन सी वर्जन रखनी है मुझे, ठीक है, या दोनों रखने हैं मुझे। तो इन सूरतों में व्हाट्स कॉल्ड एज अ कॉन्फ्लिक्ट, उसके लिए गिट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमारे पास होती है कि हम उनको कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें, ठीक है, वी हैव टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स। उसी वजह से इसको कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया है, इसको रीड करना है और देखना है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट आया, हालांकि इसने खुद ही रिजॉल्व किया, इसने बोला है कि मैंने रिजॉल्व किया वो, ओके, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स फिक्स्ड बट यू आर स्टिल मर्जिंग, यूज गिट कमिट टू कंक्लूड द मर्ज। अब इसको कमिट करना है क्योंकि ये जो है, सो आई शुड से गिट कमिट हियर, ताकि ये मर्जिंग जो है पूरी हो जाए। -m, then I say something, मैं बहुत बोल चुका हूँ, okay, now I say git status, what's happening here, let us see git status, okay, nothing to commit now, this commit was only for ये जो commit था ये इसलिए नहीं था कि, ये सिर्फ इसलिए था कि भाई साहब आपका जो नई फाइल आपके पास है उसको आप, मैं कॉन्फ्लिक्ट से ये बोल रहा था वो कमिट करो कि आपको वो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपको चाहिए आप ये कि नहीं चाहिए, और मेरे पास चाहिए डिफरेंटली, आई गॉट माय style.file which will help me in my project, ठीक हो गया, हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी हो गया, यस, हाँ जी, यार तुम लोग तो बिल्कुल चुप ही हो जाते हो मसला क्या है तुम लोगों का, कुछ, हाँ जी, अरे कुछ तो बोलो यार, आप लोग मुझे थका ही दिया आज, और ऊपर से आप चुप बैठे हो सारे, क्या मसला है, नींद आ गई?